गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज़ अ branch of mathematics where we learn about the chances of happening of any event, or in easy language we can say we are measuring the uncertainty of certain events and representing them mathematically. Even certainty also sometimes, but majorly in this chapter, in this topic, we study about what is the mathematical answer or mathematical representation of happening of any particular event, like we are tossing a coin or we are taking up playing cards, one card from the pack of 52 playing cards. What is the probability of getting a specific result? So, let us start. Firstly, we are going to cover basics of this topic, and we know that the first term of this topic is experiment, or more specifically random experiment. Random experiment are the experiments whose results are different whenever they are performed in a similar conditions. Means एक जैसी सिचुएशन में अगर एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया जाए तो उसके रिजल्ट्स अगर डिफरेंट आते हैं उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे एक ही कॉइन को अगर अभी मैं टॉस करूं, हो सकता है हेड आएगा, अगले दिन इसी टाइम पर इसी सिचुएशन में सब कुछ टाइम ही सेम है, प्लेस भी सेम है, ऑल कंडीशंस आर सिमिलर, एंड व्हेन वी टॉस अगेन द रिजल्ट मे बी टेल. So when we are having different results in similar conditions, but the range of the result is still definite, certain, means head आएगा या tail आएगा ये फिक्स नहीं है, बट ये कंफर्म है कि हेड या टेल में से ही कोई एक ऑप्शन हो सकता है. अगर आप प्लेइंग कार्ड्स के पैक में से एक कार्ड निकालते हैं तो कौन सा कार्ड आएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 1 to 52 जो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं उनमें से ही कोई आएगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. इन वन लाइन वी कैन से एक्सपेरिमेंट विच इज गिविंग डिफरेंट रिजल्ट्स इन सिमिलर कंडीशंस, बट द रिजल्ट्स इज द रेंज ऑफ द रिजल्ट इज डेफिनेट, डिनोटेड बाय एस. ये 9th-10th में बस इतना ही समझना काफ़ी है, बट फॉर 11th and 12th क्लासेस वी हैव टू नो मोर अबाउट इट. द सैम्पल स्पेस, random experiments, all possible outcomes is known as sample space, which is denoted by S. So second terms comes outcomes or results. What is outcomes? All the results, all possible results of random experiment are called outcomes. Once again, all possible results of any random experiment are called outcomes or results. Third term comes sample space. This is set of all possible outcomes of any specific experiment. मीन्स किसी एक्सपेरिमेंट के टोटल कितने पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो सारे रिजल्ट्स का ग्रुप, उन सारे रिजल्ट्स का सेट, उसको बोला जाता है सैम्पल स्पेस. जैसे आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो आइदर हेड और टेल, एंड व्हेन वी आर राइटिंग दिस हेड एंड टेल इन अ
curly bracket separated by comma or properly in this form, then this will be called a sample space and denoted by S. When you are rolling a die, we know that 1 to 6 any number can come. So the sample space of this experiment will be 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is about sample space of any random experiment. Then comes event. Event is any condition related to any experiment, any random experiment, which is satisfied by some or all outcomes of the experiment. Listen again, event is a condition which is satisfied by some or all elements of a specific random experiment. For example, if experiment is tossing a coin, getting head, is a condition. So we can say event is getting a head when a coin is tossed, or getting a tail, or getting even numbers when a die is rolled, and it is denoted by capital letters E, F, A, B, C, etc. These are certain basic terms which we have to know. For class 11th and 12th, event can be defined some in little different manner. It is a subset of sample space. सबसेट मीन्स सैम्पल स्पेस का जो सेट है, जो ग्रुप है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स को लेके जैसे 1, 3, 5 एक नया सेट बना दिया, एक नया ग्रुप बना दिया. सो यहाँ पर हम इवेंट को एज ए सबसेट डिफाइन करते हैं. 9, 10th में आप सिर्फ एक कंडीशन, एक टर्म या एक सेपरेट ग्रुप की तरह समझ सकते हैं. नाउ कम्स probability of any event. Before defining the probability, one more thing we have to understand, that is whenever we are putting any condition or whenever we are talking about any event, there will be some outcomes, some result which are in favor of the event and remaining will be in against of the event. जैसे मैंने कहा इवेंट है गेटिंग इवन नंबर व्हेन अ डाई इज रोल्ड, तो इवन नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं, वो उसके अगेंस्ट में होंगे, उसको फेवर नहीं करेंगे, उसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे. विच मीन्स दैट कि अगर आपका सैम्पल स्पेस को हम एक ग्रुप या सर्किल की तरह दिखाएं, टोटल सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं, तो जैसे ही आप कंडीशन लगाएंगे वो पूरा सैम्पल स्पेस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. एक होगा जो फेवरेबल ऑफ एनी इवेंट ई, देन रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा नॉन फेवरेबल ऑफ ई. सो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन या फार्मूला तक जाने के पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ कोई भी कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, इमीडिएटली द एंटायर सैम्पल स्पेस विल बी डिवाइडेड इनटू 2 parts. One part in a favor of the condition and remaining part will be against of the condition or not satisfying or non-favorable. So there will be basically 3 different terms: favorable E, non-favorable of E and total possible outcomes. So फार्मूला बनाने के पहले हमें इसको थोड़ा सिंबॉलिकली समझना पड़ेगा. अगर टोटल सैम्पल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल m है, जिसको हम एज ए सेट, लैंग्वेज ऑफ सेट में कार्डिनल नंबर ऑफ सेट
S इक्वल टू m, इस तरह से लिखते हैं 11th-12th में। अगर सैम्पल स्पेस में m एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर 6 हैं, यहाँ पर 2 हैं, इस तरह से एक जनरल टर्म हम m सपोज करते हैं। कोई दूसरा इवेंट e है, उसके फेवर में मान लीजिए t एलिमेंट्स हैं जो उसको फेवर कर रहे हैं, उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो जब m में से t को माइनस कर देंगे तो जो भी बचेंगे वो कहाँ पहुँचेंगे, जो फेवर नहीं करेंगे, जो e के अगेंस्ट में जाएंगे, और उसको लिखा जाएगा नॉट e। यानी जो e को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, तो उसको नॉट e भी कहते हैं। और अगर हम सेट की लैंग्वेज में बोलें तो दिस विल बी कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट e, यानी सेट e को छोड़ के बाकी के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉट ऑफ e विल बी m माइनस t। अब हम देखें कि इसके बाद अगर हमें डिफाइन करना है तो हम इस तरह से, जो प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट e इज नंबर ऑफ आउटकम्स और रिजल्ट्स favorable of E upon total number of outcomes, or we can say number of elements in sample space। तो इस केस में यहाँ पर आ जाएगा T upon M, because T are in favor of E। Then we say probability of not of E, that will be m minus t upon m, and the same thing is known as complement of E। So one more term, that is complement of any event। complement event कहने की बजाय हम उसको बोलते हैं complement of any event, क्योंकि वो complement किसी इवेंट पर डिपेंड करता है। कॉम्प्लीमेंट इवेंट इंडिपेंडेंटली इस तरह से डिफाइन करने की बजाय हमें बोलना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट। सो दिस नॉट ई इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई, डिनोटेड बाय ई सी और ई डैश और ई बार। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज m minus t upon m। Now see, when we are adding probabilities of E and not of E, then we are getting t by m plus m minus t by m. After taking LCM, t plus m minus t, t is cancelling, m upon m, that is 1. So we are going to get a very good result at last, that is sum of the probability of any event and probability of complement of that event is always 1. So this is a very useful result. Next, as we know that whenever any experiment is going to perform, there will be some results, means there will be some element in sample space always. If we see the range of the syllabus of class 9 to 12, normally there are certain experiments like tossing coin 1 time, 2 times, 3 times, or rolling a die 2 times, 3 times, or 3 dice are rolling, throwing together, likewise। So ये सारे experiments में हर बार हमेशा आप देखेंगे सैम्पल स्पेस में कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होता है, यानी कोई ना कोई रिजल्ट्स उसके अंदर ज़रूर आएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होगा, वेरी रेयरली, कि किसी सैम्पल स्पेस का कोई भी आउटकम ना हो। ऐसी कंडीशंस बहुत कम होगी, यानी सैम्पल स्पेस कभी भी नल सेट नहीं होगा। हो सकता है अगर हमने ऐसे कोई ऐसे बिल्कुल आउट ऑफ कॉमन एक्सपेरिमेंट बता दें
a number which is odd and even both likewise or anything similar to this, but general case में sample space is always non-empty set, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट उसके अंदर ज़रूर होता है। तो हमें ये देखना है कि अगर सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स हैं और जो कंडीशन हम सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस इवेंट के अंदर कोई एलिमेंट्स है या नहीं है, दोनों केसेस हो सकते हैं। एस नॉर्मली इज नॉट एम्प्टी, ये 11th-12th के लिए है बेसिकली। सैम्पल स्पेस इज नॉन एम्प्टी सेट। नाउ इवेंट ई, ये भी एक सेट है, इसी में से निकाल के हमने बनाया है, ये भी एक सेट की तरह है। ये सेट भी नॉर्मली नॉन एम्प्टी होता है, बट कुछ केसेस में ऐसी कंडीशन हो सकती है, जैसे मैं बोलूं कि एक डाई को रोल किया एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 7, तो 7 इसके अंदर नहीं है, तो उस केस में हमारा जो इवेंट है, जो कंडीशन है, उसको कोई भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, दैट विल बी null set or empty set. So if E is 5, then number of elements will be 0, then E is called impossible event. And that is why, because numerator is 0, so whatever is the denominator, total value will be 0, so the probability of such event will also be 0. तो ये events का एक बहुत ही common type है, impossible events and sure event. तो ये impossible event के लिए हमें एक side heading आप लिख सकते हैं, ये उतना important नहीं है, you can write impossible event and then श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या है? ऐसा इवेंट या ऐसी कंडीशन जो हमेशा होगा, चाहे कोई भी आउटकम आए। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो सारे आउटकम्स उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। जैसे इसी केस में मैं बोलता हूँ, और डाई इज रोल एंड the event is, or find the probability of the event that number is natural number and less than 7. अगर कंडीशन है नेचुरल नंबर लेस देन 7 तो 1 to 6 ही होगा। इन दैट केस E and S both are equal. Then number of elements in E will be same as number of element of S, and this will also be equal to M, both will be M. Therefore, the probability of event E will be M upon M, that is 1. So that is the reason why we say probability of sure event is always 1. Impossible event probability is 0 and for sure event it is 1. The reason is, in that case the event and sample space both are equal. So numerator and denominator are same. Then comes another relation regarding probability of any event. In any case, कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा, जब भी आप कंडीशन लगाएंगे वो या तो m के इक्वल होगा या 0 हो सकता है। यानी E के अंदर या तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा, या हो सकता है कि सारे के सारे एलिमेंट हो, और तीसरा केस क्या है कि उन दोनों के बीच में हो। जैसे हमने ऑड और इवन में लिया, तो अगर आप ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देन इट विल बी 1 3 5, 3 एलिमेंट्स विल सेटिस्फाइड इट आउट ऑफ 6, यानी E के अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं। तो देयर आर 3 केसेस, ठीक से देखें, ठीक से समझ लें। कोई भी इवेंट होगा, या तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होंगे, या टोटल m या जितने सैम्पल स्पेस में उतने होंगे, या इन दोनों के बीच में होंगे, जैसे हमने t लिया। तो इस केस में आप देखेंगे जो t की वैल्यू है वो क्या होगी, वो m के इक्वल होगी, या उससे लेस होगी, या
ज़ीरो होगी या ज़ीरो से ग्रेटर।